Good evening, namaste, and welcome on Filler Farm app. Good evening, Mamta. Good evening. So once again, briefly, I welcome you all on this platform, Filler Farm app. We are family student, and you are the family members of Filler Farm. Okay. And once again, student, briefly, I would like to tell you, you can share our social media platforms like our Filler Farm app is on the different social media app, Instagram, Telegram, WhatsApp group. So you can share. And I would like to tell you about these are our courses, and briefly, you can purchase, you can share this. Okay. Paper 1, paper 2, 6 month, and paper 1 and paper 2, and paper 1, paper 2 for 12 months. You can purchase, and you will get here notes, previous year question paper with answer, 100 plus mock test. So student, once again, good evening. I welcome you. And if anybody wants to join the online class, and if you want to purchase English literature or any subject, if you want to purchase any course from Filler Farm app, then you can use my code DISENG 10 DISENG 10. By using this code, you can get 10% off. You can get discount of 10%. And anybody can take this advantage. And here is about me. I am your mentor of English literature and faculty of Filler Farm. Student, I have already qualified UGC NET in English, and right now I am pursuing PhD. I have also done MA in English, MA in sociology. I have been awarded by the government of India, and these are my awards, two awards which is given by the President of India. And I have 15 years of teaching experience. I think once again, let me confirm my voice, audio, video, screen, everything is visible. Yes or no? Everything is clear, fine. Everything is fine, student? Yes or no? Tell me. Everything is fine? Then we shall move ahead. Okay? Yes. So, student, I would like to tell you, let us briefly, as I every day I revise the previous year class, and then we shall go ahead. Okay? So, student, before going ahead, I would like to remind you, student, we are studying Unit 6. There are 10 units in English literature. The prescribed syllabus of UGC NET NTA, there are 10 units. 10 यूनिट है स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें पहली 4 यूनिट्स अब कल से हम शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट फर्स्ट 4 यूनिट्स, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्रोज. ठीक है, हम कल जो है पहली जो महत्वपूर्ण 4 यूनिट से ऑल टुगेदर वी विल स्टडी, है ना. हम चारों यूनिट साथ में चलेगी. ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, हमारी जो 6 यूनिट है, यूनिट 6 इंडियन इंग्लिश इन इंडिया, अभी जस्ट हम लोग आज इसको एक वाइंड अप करने जा रहे हैं. देन वी शैल रिवाइज दिस यूनिट बाय मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स एंड मॉक टेस्ट, है ना, क्वेश्चन. ठीक है. तो we will solve it, and I think everything is fine. And now let us move ahead. Okay. Once again, good evening, and I welcome you all, students. See, yesterday we have revised Arundhati Roy. As I told you, students, she was born in 1959. Her full name is Sujena Arundhati Roy. As I told you, Indian writer. She was the Indian writer best known for her novel God of Small Things, and published in 1997. Won main Booker Prize. You have to remember this one. Won main Booker Prize. And Sahitya Academy Award also she has been given in 2006. Or then when we see the God of Small Things, as I told you, there is a very nice theme. एक बहुत ही प्यारी थीम है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग. छोटी छोटी चीजें कैसे हमारे जीवन में इफेक्ट डालती है, उसके बारे में इस नॉवेल में दिया गया है. ठीक है. और द स्टोरी जो सेट है ये अयमेनन केरला में, अयमेनन केरला में स्टोरी सेट है, स्टूडेंट. एंड here are some more fraternal twins here when we talk about Rahel Esthapan. Rahel and Esthapan, these are twins, brother and sister. ठीक है. So
and 7 years old student. See, समू अम्मू एंड फादर बाबा, ठीक है, ये इनके पेरेंट्स हैं और इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आप लोग ये कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के बारे में चर्चा करी है ना। और चिल्ड्रन लिटरेचर इनके लिए बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है 1992 में। अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए पद्मश्री मिला है, तो 1999 में पद्म भूषण 2014। और इनका एक कोटेशन, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, द पास्ट इज जस्ट फॉर इट फीड्स द प्रेजेंट, हमने देखा था। अरुण जोशी जी के बारे में हमने पढ़ा है ना। और देन जीवी देसानी, स्टूडेंट रिमेंबर ऑल अबाउट ए चैप्टर रिटन बाय जीवी देसानी। एंड देन वी डिस्कस्ड सलमान रश्दी, सलमान रश्दी, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन won the Booker Prize. The novel written by Salman Rushdie is Midnight's Children 1981। इसकी जो प्लॉट समरी है, प्लॉट जो है वो इंडिपेंडेंस के समय 1947 जो मिडनाइट है 12 to 1 PM, ये 12 to 1 AM, जो 12 से 1 बजे के बीच में जो बच्चे जन्मे थे उनको लेकर के ये दिया गया है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मध्य रात्रि के बच्चे। द सैटेनिक वर्सेस के लिए इनको फतवा भी जारी किया गया था, इस्लाम के विरोध में लिखने के इनके ऊपर इल्जाम लगा था। सलमान रश्दी के बारे में हमने बात करी। फिर स्टूडेंट एंड ये इनके कुछ वर्क्स हैं, आपको पढ़ना है। और आज हम एक नई क्लास, आज जो नया सेशन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो हाँ, वंस अगेन लेट मी रिवाइज। भवानी भट्टाचार्य के बारे में हमने चर्चा करी थी, शशि थरूर के बारे में हमने चर्चा करी है, अरविंद अधिगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिनोन्ड नॉवेलिस्ट, आप देख सकते हैं इनके बारे में, बहुत जाने माने अभी है। इनकी जो व्हाइट टाइगर है बहुत फेमस है स्टूडेंट, है ना। व्हाइट टाइगर बहुत फेमस है, मेन बुकर प्राइज मिला है। और बेसिकली ही वाज बोर्न इन मद्रास बट नाउ ही इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में अभी फिलहाल में है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइटर कहते हैं। स्टूडेंट आपको बता दें कि ये पहले जो आप फोर्थ इंडियन बोर्न ऑथर है ना, जिनको ये मिला है। सलमान रश्दी को मिला है मेन बुकर, अरुंधति राय के बारे में भी देखा, और किरण देसाई। वीएस नायपाल है, लेकिन ये जो है डायस्पोरिक राइटर है। इनका अडिगास सेकंड जो बुक है बिटवीन द असैसिनेशंस, है ना, ये देखिए इसमें 12 स्टोरीज है। और इनका एक और थर्ड बुक जो इनकी है, आपको ध्यान रखना है, द लास्ट मैन इन टॉवर। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर द व्हाइट टाइगर के बारे में मैंने बताया था, बलराम हलवाई इसके मेन कैरेक्टर है, आपको ध्यान रखना है। चेतन भगत, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट राइट नाउ एट प्रेजेंट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर novelist at present, Indian author, columnist, screen writer and YouTuber. I think most of the students know about Chetan Bhagat, बहुत सारे लोगों जानते हैं। और यंग एल्यूमिनी अचीवर्स अवार्ड भी इनको मिला है। और इनके 5 ऑफ चेतन्स नॉवेल, स्टूडेंट रिमेंबर, 5 ऑफ चेतन्स नॉवेल्स हैव बीन adopted into films। 5 नॉवेल जो है इनके जो है फिल्म के लिए अडॉप्ट किए गए हैं। इसमें एक नॉवेल है स्टूडेंट वन नाइट एट द कॉल सेंटर, इसके ऊपर हेलो फिल्म बनी है 2008 में। इनकी एक और बुक है 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, 3 इडियट इसके ऊपर बनी थी। फिर द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसके ऊपर कायपोचे बनी है। और 2 स्टेट्स, ये 2 स्टेट 2014 में। और ये इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी जो लव लाइफ है, इनकी जो वाइफ है ना, तो उनको ये माना जाता है कि इनकी जो वाइफ है चेतन भगत की, उनके साथ उनके पर्सनल इनके जो घटनाएं हैं उसको लेकर के ये बनी है। इसमें कृष्णा मल्होत्रा और अनन्या स्वामीनाथन 2 कैरेक्टर होते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पर 5 कर लेना, है ना, 5 हाफ गर्लफ्रेंड, ये नॉवेल ही हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको सारे नॉवेल्स एक बार फिर से याद रख लेना है, रिमेंबर इट। नॉन फिक्शन में मैंने आपको बताया था कल कि व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम और इंडियन पॉजिटिव, इंडिया पॉजिटिव, ये आपको पढ़ना चाहिए एज अ यंग स्टूडेंट, एज अ एस्पायरेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यू शुड रीड दिस नॉन फिक्शन, बहुत अच्छा वर्क है, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ लेट अस गो अहेड। चेतन भगत के बारे में बहुत सारे अवार्ड्स है, यू कैन गो थ्रू दीज अवार्ड्स एंड यू कैन स्टडी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट गिरीश रघुनाथ, है ना, कन्नाड स्टूडेंट। ये नॉवेलिस्ट नहीं है, ड्रामाटिस्ट है, प्लेइस्ट है, प्ले राइट है, ठीक है ना, ड्रामाटिस्ट है, आप देख सकते हैं। और
ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है 1999 में, ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इनको पद्मश्री मिला है 1974 में, पद्म भूषण मिला, देखिए है ना, ये पद्मश्री, देन पद्म भूषण इन 1992 एंड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1994। सो गिरीश कर्नाड भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हया वंदना इनका बहुत महत्वपूर्ण जो हया वंदना, और उसके बाद में आप देख सकते हैं नागमंडला, है ना, और ययाति है ना, ये सारे आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ट्रांसलेट किया बादल सरकार का इवाम इंद्रजीत इनटू इंग्लिश। अभी हम बादल सरकार को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इवाम इंद्रजीत को इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, है ना, इवाम इंद्रजीत। आगे हम देखते हैं, देन गिरीश कर्नाड के ये वर्क्स आप लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लें। नाउ टुडे लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक फ्रॉम महेश दत्तानी स्टूडेंट, one of the most popular प्लेइस्ट। वंस अगेन आई वुड लाइक टू सॉरी, यहाँ पर ड्रामाटिस्ट है ना, ये प्लेइस्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ड्रामाटिस्ट। तो यहाँ पर जो है जो महेश दत्तानी है, ही वाज बोर्न इन 1958। पहली बात तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू, चलिए क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? So our today's class is starting from Mahesh Dattani, and I think I would like to tell you this will be the you can say last class of English in India, and then we will revise again and again. I told you student, हम revision करेंगे बीच बीच में, I will check, I will go for revision, as I told you I believe in revision, no revision no division, ठीक है। तो हम रिवीजन करेंगे और आई थिंक बहुत अच्छे से करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं महेश दत्तानी जी के बारे में। तो he is an Indian director, actor, playwright and writer, and basically he was born in Bangalore। डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्ले राइट भी है और राइटर भी है, ठीक है। तो ड्रामाटिस्ट ज्यादातर आप देखेंगे, अभी हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो खुद भी डायरेक्टर, एक्टर, प्ले राइट रहे हैं। स्टूडेंट जो किस तरीके से एक्टिंग में क्या लिखना है, कैसे परफॉर्म करना है, ड्रामा क्या एक्चुअल में, इट इज you can say performance on the stage, it is performed on the directly, it is performed on the stage। और जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके माध्यम से कैरेक्टर्स क्या कहता है उसके एज इट इज हम यहाँ पर कोट लिखते हैं। यहाँ का नरेशन जो लिखने की स्टाइल है आप देख सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, जैसा आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट स्पीच में जो हम कोटेशन में लिखते हैं वो प्ले राइट, यहाँ पर इस तरीके से हमारा ड्रामा लिखा जाता है। तो यहाँ पर महेश दत्तानी के कुछ फेमस प्लेस की हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट फेमस प्लेस रिटन बाय महेश दत्तानी, सो फाइनल सॉल्यूशंस रिटन इन 1993 गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस प्ले। स्टूडेंट 1993 में फाइनल सॉल्यूशंस लिखा गया बाय महेश दत्तानी, एंड दिस ड्रामा प्ले रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर महेश दत्तानी, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है किस किस को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है और किस वर्क के लिए मिला है। नेक्स्ट है इनका वेयर देयर्स विल, है ना, ये वेयर देयर्स विल, जहां चाह वहां राह, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो इट डील्स विद मनी एज अ सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, डील्स विद मनी एज अ सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। फिर उसके बाद में इनका है ब्रेवली फॉट द क्वीन, which was published in 1991, which was published in 1991। On a muggy night in Mumbai, ये भी एक है। तारा, one of the most famous drama written by Mahesh Dattani। और 30 days in September, this was also written in 2001, and the murder that never was 2000 में छपा है। So these are the famous plays or dramas written by Mahesh Dattani। Student, you have to remember, you have to memorize it। Clear है? Once again, please confirm me, thumbs up me, my voice, video, screen, audio, everything is fine? Yes or no? Yes or no? Yes। Okay, so I would like to tell you, he is the first remember student, here is I think he is the first playwright, ठीक है।
He is the first English playwright who is awarded with Sahitya Academy Award. Student, remember, आपको ध्यान रखना है क्या है, ही इज द फर्स्ट इंग्लिश प्लेराइट। देखिए पहले इंग्लिश प्लेराइट है जिन्होंने क्या है साहित्य एकेडमी अवार्ड। देखिए प्लेराइट, नॉवेलिस्ट नहीं, प्लेराइट यानी ड्रामाटिस्ट। नॉवेलिस्ट तो है, नॉवेलिस्ट इंग्लिश। आई वुड लाइक टू पुट वन क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा मैंने कि कौन है, क्या ऐसे पहले नॉवेलिस्ट है जिनको साहित्य एकेडमी, इंग्लिश नॉवेलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली रिटन राइटर इन इंग्लिश, ठीक है। और ये प्ले राइट है ना, यानी ड्रामाटिस्ट है। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉवेलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट। तो ड्रामाटिस्ट है पहले फर्स्ट इंग्लिश प्ले राइट, है ना, हु वन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड। His other plays are, when we talk about Mahesh Dattani's other plays, dramas, so Seven Circles Round, which was published in 1998, Brief Candle, which was published in 2009, Where Did I Leave My Purda, है ना, 2012, The Big Fat City, है ना। And then when we talk about Dattani was much influenced by Gujarati author Madhurai, especially by her book कुमारनी, ठीक है। ये बुक जो लिखी है मधुराई ने, इस बुक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे दत्तानी। एक्चुअली मधुराई जो है गुजराती ऑथर है। यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू कैन रिवाइज द facts and the works written by Mahesh Dattani. Student, Dattani directed the following films. As I told you, he was the director, है ना, वो जो है डायरेक्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने जो है निम्न फिल्मों को जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है: मंगू सफल, डांस लाइक अ मैन, मॉर्निंग राजा, एक अलग मौसम। So these movies have been directed by Mahesh Dattani. So remember it. And here is one of the most famous work written by Final Solutions. It is one of the most popular works written by Final Solution. Student, ये इनका जो है ड्रामा है which was published in 1993, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो मेन इशू है स्टूडेंट, इसमें इशू क्या है, कम्युनल हार्मनी इज रेज्ड। कम्युनल हार्मनी का मतलब यहाँ पर है हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स, है ना। ये इस प्ले के माध्यम से, इन दिस प्ले it is established that how communal harmony is, you can say, managed between Hindu and Muslim. हिंदू और मुस्लिम के बीच में किस प्रकार जो है एक सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द, है ना, कम्युनल हार्मनी, भाईचारा मेंटेन किया जाता है। तो उसको लेकर के है किस तरीके से एक विश्वास बनता है, फिर टूटता है, बेट्रेड होता है, धोखा होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये फाइनल सॉल्यूशंस में दिखाया गया है स्टूडेंट, ठीक है। और फाइनल सॉल्यूशंस में हम देखते हैं कि वास्तव में सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स एंड नाउअडेज आल्सो यू कैन सी, है ना, आई डोंट स्पीक मोर अबाउट इट बट यू कैन सी अराउंड यू, एंड व्हेन यू go through the newspaper then you can see. This play is in 3 acts. It was first performed in 1993, ठीक है, 1993 में पहली बार इसको परफॉर्म किया गया। The play moves from the partition to the present day communal rights. देखिए देश जब विभाजित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में विभाजित हुआ, उस समय से लगा के अभी तक जो है टू द प्रेजेंट डे कम्युनल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ राइट्स में स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है वो आना चाहिए, है ना। जो कम्युनल आंदोलन हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से देश जब आजाद हुआ, और आपको पता है स्टूडेंट, जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो एक इस पार्टीशन के साथ में हिंदू मुस्लिम दंगे भी भड़क गए। जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, और इस बीच में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो पार्टीशन, जब देश का विभाजन हुआ, उस समय ये सेटिंग है स्टूडेंट, कम्युनल हार्मनी जो कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई दे रही है। इट प्रोव्स इनटू रिलीजियस बायोग्राफी बाय एग्जामिनिंग द एटीट्यूड्स ऑफ 3 जनरेशंस ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। पूरा जो ये जो ड्रामा है, प्ले है, ये मिडिल क्लास फैमिली, और इसमें 3 जनरेशन हैं, 3 जनरेशन के एटीट्यूड को दिखाया गया है। शुरुआत में जो जनरेशन है वो आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं,
फिर बाद में थोड़ी सी दूरियां बढ़ती हिंदू मुस्लिम के बीच में, है ना। इस तरीके से इसके जो मेजर कैरेक्टर है स्टूडेंट, हरिदिका, इन्हीं का नाम दक्षा भी है ना। तो शुरू में ये जो है एक छोटी बच्ची के रूप में रहती है, लेकिन बाद में ये 40 साल के बाद फिर, जैसे 3 एक्ट है यहाँ पर, तो शुरू में बचपना बता दिया, फिर थोड़ा सा अपर एज बता दी, और फिर फाइनल एज बताई। इस तरीके से चलता है, ये आगे बढ़ता है फाइनल सॉल्यूशंस। तो हरिदिका या दक्षा, रिमेंबर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। She was a grandmother, is obsessed with her father's murder during the partition turmoil and betrayed by a Muslim friend, जेरिन। एक्चुअल में ये जेरिन और दक्षा आपस में फ्रेंड है, लेकिन जब ये छोटी बच्ची थी तो उस समय जब देश के आजाद हुआ तो मुस्लिम जो जब दंगे हुए तो इनके पिताजी, दक्षा के पिताजी की डेथ हो गई थी या हत्या कर दी गई थी। तो इस बात से वो बार बार जो एक बुढ़ापे में भी अपने पिताजी की हत्या को भूल नहीं पा रही है, कौन, दक्षा। और शी रिमेम्बर्स अगेन इन अगर हर फादर। तो वो अभी भी बहुत ऑब्सेस्ड हैं, पीड़ित हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो इनका जो बेटा है ना, रमणीक गांधी, देखिए यहाँ पर तो देख सकते हैं, रमणीक गांधी इज हॉन्टेड बाय द नॉलेज हिज फॉर्च्यून्स वर फाउंडेड ऑन अ शॉप ऑफ जेरिन्स फादर व्हिच वाज बर्न्ड डाउन बाय हिज किन्समैन। एक्चुअल में यहाँ पर मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा। तो रमणीक गांधी जो है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, जेरिन्स फादर वाज बर्न्ड डाउन बाय हिज किन्समैन। एक्चुअल में थोड़ा सा ये जो हॉन्टेड बाय द नॉलेज, यानी हॉन्टेड बाय द नॉलेज का मतलब जो पुरानी यादें हैं इसकी, उससे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुखी होता है। कैसे कि ये जो जरीन के पिताजी है, या जरीन जो दक्षा की फ्रेंड है, तो दक्षा की फ्रेंड जरीन जो कि मुस्लिम फैमिली से हैं, उनकी दुकान को हड़पने, इसका जो किंग्समैन होता है, नौकर होता है, वो क्या है, उसको जला देता है। लेकिन वो रमणीक अब कहता है कि जो है रमणीक जो है ये दक्षा का बेटा है, और ये कहता है कि अब मुझे वो दुकान नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उनकी दुकान को जलाया, है ना, उनकी आजीविका के साधन को जलाया, अब मेरा मन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से एक इमोशंस भी है ना, कम्युनल जो राइट्स होते हैं उसमें इमोशंस को दिखा के ऐसी घटनाएं ना हो उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इट सेंटर्स ऑन अ मिडिल क्लास हिंदू फैमिली ड्यूरिंग अ कम्युनल राइट, ठीक है ना। तो वहां राइट की स्पेलिंग ध्यान रखना है स्टूडेंट, राइट, कम्युनल राइट मतलब सांप्रदायिक दंगे। इट चैलेंजेस कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को चैलेंज करती है। इट प्रमोट्स रिलीजियस प्लुरलिज्म इन साउथ एशिया, ठीक है। रिलीजियस प्लुरलिज्म का मतलब है जो धार्मिक बहुवाद है। बहुत सारे, जैसे भारत में ही आप देख सकते हैं, इन इंडिया देयर आर सो मेनी रिलीजन, बहुत सारे धर्म हैं, और पूरे साउथ एशिया में भी अलग अलग धर्म मौजूद है, उसको ये प्रमोट करता है। अंततः किस प्रकार से जो है पूरी फाइनल सॉल्यूशंस में क्या है, इसमें आपको बता दें स्टूडेंट, देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना। ये अंततः अंत में जो है बिना सॉल्यूशन के ही ये प्ले एंड हो जाता है। वन थिंग लेट मी टेल यू, कोई सॉल्यूशन निकलता है, किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, स्टिल देयर आर यू कैन से such events are happening around us in the country, you can see अभी भी सांप्रदायिक जो राइट्स हैं अभी भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशंस नहीं है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो कम्युनल हार्मनी की बात हो रही है उसका आखिर एक ऐसा रास्ता क्या है। तो यहाँ पर महेश दत्तानी जी, है ना, वो एक जनमानस पर छोड़ देते हैं कि इसका अंतिम रास्ता जनमानस ही निकाले। क्लियर है। देन स्टूडेंट यहाँ पर जो है महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क, तारा, ठीक है। आई होप यू हैव स्टडीड दिस ड्रामा तारा, ठीक है। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही आप देख सकते हैं फेमिनिस्टिक ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता हुआ ये प्ले है, ठीक है स्टूडेंट। yes or no, everything is fine, why is proper everything, yes or no, got it? ठीक है, यस। सो थोड़ा सा हम तारा के बारे में चर्चा करते हैं स्टूडेंट। लेट मी टेल यू स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, वी हैव लॉट ऑफ यू कैन से सिलेबस, वी हैव टू डिस्कस मेनी राइटर्स, एंड इवन दो आई एम ट्राइंग टू कवर अप ऑल दी टॉपिक्स, है ना। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, एज आई टोल्ड यू, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है, और जो टॉपिक्स आपको लगते हैं जो महत्वपूर्ण है उनके डीप में जाना है, तो यू कैन गो थ्रू द टॉपिक। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो?
गॉट इट स्टूडेंट? चलिए, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेन कैरेक्टर्स जो तारा के हैं, उसमें तारा है और चंदन है, और इसमें भी तारा जो है वो मेन कैरेक्टर है स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तारा के बारे में, है ना, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी स्टोरी की चर्चा करते हैं, फिर हम बात बताते हैं। द स्टोरी ऑफ द प्ले अबाउट द ट्विन्स, ट्विन्स के बारे में है, दो भाई बहन हैं, तारा और चंदन। दे आर बोर्न एज जॉइंट ट्विन्स, है ना, दे आर बोर्न एज जॉइंट ट्विन्स। इट मीन्स दोनों जॉइंट है, जुड़वा तो है लेकिन दोनों जॉइंट है स्टूडेंट, है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, इनके पैर आपस में जुड़े हुए हैं। विथ 3 लेग्स, कितने पैर हैं? 3 हैं, है ना, देयर आर 3 लेग्स। ठीक है, जुड़े हुए हैं। एंड ब्लड सप्लाई टू द थर्ड लेग इज फ्रॉम द बेबी गर्ल्स बॉडी। अब देखिए, जो थर्ड लेग है, उस थर्ड लेग का जो ब्लड सप्लाई है वो कहां से हो रहा है? बेबी के गर्ल्स बॉडी से। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत ही मार्मिक, हृदय को विचलित करने वाला एक ड्रामा है, रिटन बाय महेश दत्तानी, टू शो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव को प्रमोट, नॉट प्रमोट, लैंगिक भेदभाव को उजागर करता हुआ ये ड्रामा है, टॉपिक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट this play Tara, written by Mahesh Dattani, so only one of the twins could have 2 legs. अब जब हम इसकी बात करें स्टूडेंट, यानी ये आपस में जो है, ये दो जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं और इनके, है ना, 3 लेग। आप देख सकते हैं, ओनली वन ऑफ द ट्विन्स, इन दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों में से किसी एक को ही, किसी एक के पास ही 2 पैर हो सकते हैं और इनको एक के पास 1 पैर होगा। तो ओनली वन ऑफ द ट्विन्स कुड हैव 2 लेग्स, है ना, केवल 2 में से किसी एक के पास 2 पैर हो सकते हैं। एंड द अदर हैड टू सर्वाइव विद ओनली 1 लेग। उसमें एक चीज है, तारा क्या है? ये तारा जो है गर्ल है स्टूडेंट, तारा गर्ल है और चंदन जो है बॉय है। अब यहां पर बात करें स्टूडेंट, इट इज डिसाइडेड टू फिक्स द थर्ड लेग ऑन द मेल बेबी। अब यहां पर देखिए, इसके जो पेरेंट्स होते हैं तारा और चंदन के, वो डिसाइड करते हैं कि तारा और चंदन को अब सेपरेट किया जाए। लेकिन सेपरेट करने में समस्या यह है कि जो 3 लेग हैं, उन 3 में से 2 लेग किसको दिए जाए और एक जो लेग है वो किसको दिया जाए। तो स्टूडेंट यहां पर जो पेरेंट्स हैं, ये जो फाइनली जो सोशल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग, पेट्रियार्कियल सिस्टम में आप ये जानते हैं, इन पेट्रियार्कियल सिस्टम the baby boy is you can say preferred, है ना, या प्रायोरिटी इज गिवन टू द बेबी बॉय। एम आई राइट? जो प्रायोरिटी है वो बेबी बॉय को ज्यादातर दी जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये तय होता है कि किसके पास में, जो तारा जो गर्ल है उसको 2 लेग दिए जाएं, 2 पैर दिए जाएं, यानी जो ऑपरेशन करके सीजर से अलग किया जाएगा उनको, तब किसके पास 2 पैर होना चाहिए, या चंदन को। तो फाइनली जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, बॉय इज गिवन, या बेबी बॉय इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द फैमिली, एंड दैट्स व्हाई it is decided to fix the third leg, जो तीसरा लेग है, on the male baby's body, जो तीसरा लेग है वो on the male baby's body, so as to complete male baby. This decision was taken on the grounds of gender discrimination in our society. अब देखिए, आपको जो महत्वपूर्ण, बिल्कुल पितृसत्तात्मक, यस पितृसत्तात्मक, गुड, क्लियर है। तो फाइनली यहां पर जो महत्वपूर्ण जो तीसरा लेग है वो प्लस जो उसका जो मेन जो 2 पांव है वो चंदन यानी बेबी बॉय को दिए जाते हैं, और जो तारा है उसके पास केवल 1 लेग होता है स्टूडेंट। आप सोच सकते हैं यहीं पर एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव आता है, बेटा बेटी में डिस्क्रिमिनेशन का भाव आता है स्टूडेंट, जो कि गलत है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट, वी शुड नॉट you can say promote any kind of gender discrimination. अब तारा बौद्धिक रूप से ठीक है, वो सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। she is helpless, she is dependent upon other people because she has only 1 leg, उसके पास केवल 1 पांव है। और चंदन जो कि
दो पेयर है वो जो है सेल्फ डिपेंड हो चुका है। तो आइए आगे देखते हैं तारा के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो ट्विंस तारा एंड चंदन हैड टू गो थ्रू सर्जिकल ऑपरेशन टू गेट सेपरेटेड। और इसके लिए क्या है, तारा और चंदन को ऑपरेशन किया जाएगा, सर्जिकल ऑपरेशन होगा और दोनों को क्या है सेपरेट किया जाएगा। अगेंस्ट द विश ऑफ द डॉक्टर द थर्ड लेग वाज सेपरेटेड विद चंदन but it got rotten with the passage of time as there was no blood supply in it। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो डिसाइड किया गया, जो थर्ड लेग जो है वो जो है चंदन को देने का फैसला किया गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और फाइनली जो है वो दोनों को अल्टीमेटली बोथ द चाइल्ड बिकम्स फ्रिक्स, यानी सेपरेटेड हो जाते हैं। फ्रिक्स मतलब अजीब तरीके से दोनों सेपरेट कर दिए जाते हैं और अंततः जो है तारा जो है वो विचार करती है, सोचती। ड्रामा है स्टूडेंट, बहुत बड़ा ड्रामा है। ब्रीफली आई एम कंसाइसली आई एम टेलिंग यू, तारा जो अपने मन ही मन दुखी होती है, उसको जो है वो केवल एक पांव पे सरवाइव करना पड़ रहा है। वो सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फाइनली जो है वो किसी उसने जो बाद में लंबा समय सरवाइव नहीं कर पाती है और अंततः जो है तारा की डेथ हो जाती है। और स्टूडेंट ये सब स्टोरी कौन बता रहा है, ये सब स्टोरी उसका भाई चंदन बता रहा है स्टूडेंट। फ्लैशबैक में ये स्टोरी चल रही है। यू कैन गो थ्रू दिस प्ले आल्सो स्टूडेंट, written by Mahesh Dattani। These are the famous play written by Mahesh Dattani। Got it student? ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, both are equal, male female girl boy both are equal। and if you are a student of, if you are aspirants of English literature and if you are reading this novel, sorry drama, so please do not have any kind of gender discrimination, behave equally with boy and girl। ठीक है, you should behave equally, do not have any kind of gender discrimination in your mind। ठीक है, इनका एक और नॉवेल है, इसको आप पढ़ लेना स्टूडेंट। ब्रीफली लेट मी टेल यू, डांस लाइक अ मैन, ये भी ड्रामा है। पेट्रियार्की हैज बीन ब्रॉट आउट इफेक्टिवली इन दिस ड्रामा। ठीक है, आप देख सकते हैं जयराज एंड रत्ना आर द मेन कैरेक्टर्स इन द कम अंडर प्रेशर ऑफ पेट्रियार्की। ये आप ध्यान रखना है, पेट्रियार्कियल ये है। मैंने कहा ना कि महेश दत्तानी इज मोस्टली नोन फॉर फेमिनिस्टिक अप्रोच, कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ये प्रमोट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जयराज वांटेड टू परस्यू हिज कैरियर एज भरतनाट्यम डांसर बट हिज फादर अमृत पारेख्स ऑटोक्रेसी डजंट अलाउ हिम टू बी अ डांसर। ठीक है, तो ये जो है जयराज जो है भरतनाट्यम डांसर बनना चाहता है, लेकिन जो अमृत पारेख्स ऑटोक्रेसी है, जैसे आप देख सकते हैं फैमिली में कोई ना कोई मुखिया होता है, उन्हीं की चलती है, तो वो जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं, इस बारे में है। और ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। इसके बाद में इनका जो एक और जो ड्रामा नेक्स्ट है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। इसका हिंदी आप जानते हैं स्टूडेंट, प्रोटागोनिस्ट है इसमें उमा। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर आपने पढ़ा होगा, 7 फेरे। 7 फेरे जब जो कपल हैं, न्यूली कपल, व्हेन दे गॉट मैरिड, है ना, व्हेन दे गेट मैरिड, तो दे हैव टू गो फॉर 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, है ना। अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेना पड़ते हैं। तो ये भी एक ड्रामा है, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, बहुत प्यारा। सो वंस अगेन लेट अस रिवाइड महेश दत्तानी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप वंस अगेन। सो महेश दत्तानी की बात करें तो इंडियन डायरेक्टर, एक्टर, प्लेराइट और राइटर हैं। इनके फेमस प्लेज है फाइनल सॉल्यूशंस, वेयर देयर आर विल, ब्रेवली फॉर द क्वीन, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, तारा, 30 डेज इन सितंबर, द मर्डर दैट नेवर वाज। और ये इज द फर्स्ट इंग्लिश प्लेराइट हु इज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड। यू कैन रिवाइज, read it quickly। Then here are some famous plays: Seven Circle Round, Brief Candle, Where Did I Leave My Purda, The Big Fat City। ठीक है, और दत्ता ने also directed some films, है ना, मंगू साउफल, डांस लाइक अ मैन, मॉर्निंग राजा, एक अलग मौसम। Final solutions we discussed, it is about communal harmony and based on Hindu-Muslim problems। Then we discussed Tara, both are you can see major characters। Tara and Chandan both are joint twins। ठीक है, दोनों ही joint twins हैं
और यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, 3 पैर होते हैं, जब इनको सर्जरी करके अलग किया जाता है तो चंदन को 2 पैर दिए जाते हैं और तारा को 1 पैर, और अंततः जो है तारा जो की डेथ हो जाती है। यू कैन गो थ्रू दिस ड्रामा। डांस लाइक अ मैन, और फिर उसके बाद में है 7 स्टेप अराउंड द फायर, गो थ्रू दिस ड्रामा। स्टूडेंट नाउ ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, everything is fine. Now let us discuss Vijay Tendulkar. Student Vijay Tendulkar, he was born in 1928 and died in 2008. He was born in 1928 and died in 2008. विजय धोंडोपंत तेंदुलकर, पूरा नाम है इनका विजय धोंडोपंत तेंदुलकर, was a leading Indian playwright. देखिए ये भी प्ले राइट है, मूवी एंड टीवी राइटर, लिटरेरी एसेइस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट एंड सोशल कमेंटेटर, प्राइमरी इन मराठी। देखिए विजय तेंदुलकर के महाराष्ट्रियन है, ठीक है। देव कुमार जी, स्क्रीन इज प्रॉपर्ली, फॉन्ट साइज ठीक है, मोबाइल में विजिबल है स्टूडेंट? यस टेल मी, इज इट विजिबल इन मोबाइल? मोबाइल में विजिबल है, यस और नो? इज इट विजिबल इन मोबाइल? चलिए, ओके। सो विजय धोंडोपंत तेंदुलकर मुंबई मराठी बेसिकली वो, और उनके जो फेमस प्ले है उसमें शांतता कोर्ट चालू आहे, मराठी में लिखा है शांतता कोर्ट चालू आहे, इसका इंग्लिश साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, पब्लिश्ड इन 1967। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। शांतता कोर्ट चालू आहे, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। यहां पर आप देख सकते हैं इनका एक और है ना, खामोश कोर्ट क्या है, सत्र में है, घाशीराम कोटवाल 1972 में, और फिर सखाराम बाइंदर या बिंदर, ठीक है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण इनके वर्क्स हैं, प्लेज है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर। अब यहां पर देख सकते हैं एट द एज ऑफ 14 ही पार्टिसिपेटेड इन 1942 इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, लिविंग हिज स्टडीज, पढ़ाई छोड़ दी, 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, let me ask you student, in 1942 which movement was, you can say, run by महात्मा गांधी जी? टेल मी, कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, बताइए 1942 में। there are major 3, you can say, movement which were launched by महात्मा गांधी जी, टेल मी 1942 में कौन सा मूवमेंट चला था, बताइए, फ्रीडम मूवमेंट बाय महात्मा गांधी जी। ओके स्टूडेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ही बिगेन हिज करियर राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, है ना, और हिज अर्ली प्लेज आर, देखिए इनके कुछ, विजय तेंदुलकर जी के कुछ महत्वपूर्ण जो शुरुआत के प्ले है उसमें है आमो यावर कोण प्रेम करनार, अगेन ये मराठी में है, आमो यावर कोण प्रेम करनार, इसका इंग्लिश है हु विल लव अस, हु विल लव अस। और इनका अगला है गृहस्थ या द हाउस होल्डर, है ना, या द हाउस होल्डर, इनके फेमस प्लेज है। इन 1956 ही रॉट श्रीमंत, श्रीमंत, in 1956 he wrote श्रीमंत which established him as a renowned writer। श्रीमंत से इनको बहुत आप कह सकते हैं पहचान मिली स्टूडेंट, विजय तेंदुलकर जी को श्रीमंत जो वर्क था उससे बहुत पहचान मिली, ठीक है। इसके बाद में हिज प्ले गीदड़ या गिदड़े, आप देख सकते हैं द वल्चर्स, है ना, गीदड़ या गिदड़े, द वल्चर्स, आप उसको गिद्ध बोल सकते हैं, proved to be a turning point in Tendulkar's writings with regard to the establishment of his own unique writing style। द वल्चर जो गिद्ध होते हैं, आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे को नोच नोच के खा जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो द वल्चर्स जो प्ले है इनका, उसमें लोग या किसी एक फैमिली को सिंबल करके, फैमिली में जो लोग किस प्रकार से पैसे को लेकर के एक दूसरे को जो है मारते हैं, काटते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। और आज यही हो रहा है स्टूडेंट, most of the people, most of the relations are maintained only behalf of money,
है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ मनी, मनी या पैसे के कारण आजकल रिश्ते मेंटेन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है। बेस्ड ऑन द शॉर्ट स्टोरी डाई पेन ट्रेप्स बाय फ्रेडरिक जोरेमेट, तेंदुलकर रॉट द प्ले साइलेंस। ये जो स्टोरी है स्टूडेंट, है ना, इस स्टोरी के ऊपर बेस करके उन्होंने साइलेंस द कोड इज इन स्टेशन लिखा है, और ये फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1967 में। इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1967, पहली बार इसको 1967 में परफॉर्म किया गया था। गॉट इट स्टूडेंट? देन विजय तेंदुलकर जी के बारे में बात करें तो इन 1972 तेंदुलकर रॉट घासीराम कोटवाल, घासीराम कोटवाल लिखा, और इसमें ऑफिसर घासीराम which deals with the political violence set in 18th century पुणे। देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस को बताता है घासीराम कोटवाल। यहाँ पर कोटवाल का मतलब है पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी। किस प्रकार से वो जो है घासीराम जो है एक ब्राह्मण होता है और किस प्रकार से वो परेशान किया जाता है उसको। ठीक है, वहाँ के जो राजा होते हैं एक, है ना, तो और वहाँ की जो पुलिस है उसके द्वारा, और बाद में वो खुद जो है राजा वहाँ के घासीराम कोटवाल को पुलिस ऑफिसर बना देता है। तो वो जो है यहाँ पूरी स्टोरी उसके आसपास गई है, बताई गई है घासीराम कोटवाल के बारे में और उनकी बेटी। 2004 में ही रॉट अ सिंगल एक्ट प्ले हिज फिफ्थ वुमेन। देखिए ये जो है इनके वर्क का नाम है, हिज फिफ्थ वुमेन, हिज फर्स्ट प्ले इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये देखिए अंग्रेजी भाषा में पहला प्ले है ये, बाकी जो है ट्रांसलेटेड है घासीराम कोटवाल। ठीक है, ये भी जो है ट्रांसलेटेड है, और ये जो इंग्लिश में लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में, हिज फिफ्थ वुमेन, हिज फिफ्थ वुमेन। हिज प्ले सखाराम बाइंडर वाज बैंड इन इंडिया इन 1974। सखाराम बाइंडर को जो है बैंड कर दिया गया था, और जो विजय तेंदुलकर है वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कुछ वर्क्स इनके कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, घासीराम कोटवाल भी कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन जो है ये पढ़ाया जाता है। और फिर हम जो है तेंदुलकर साहब के कुछ मेजर नॉवेल्स की बात करें तो कादम्बरी हैं, और फिर इनके एक और दो, है ना, यहाँ पर 1 and 2 ये आप देख सकते हैं। स्टोरीज इन्होंने लिखी है द्वंद्व, 12 और फुल पकरू, है ना, बटरफ्लाई, फुल पकरू करू। तो ये जो है इनके शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। कुछ प्लेज इनके जो है ये देखिए, गृहस्थ हाउस होल्डर, है ना, गृहस्थ, श्रीमंत यानी द रिच, इसका इंग्लिश है द रिच, 1956 में है। थीफ एंड पुलिस, थीफ पुलिस, चोर पुलिस, बहुत प्यारा ड्रामा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। गिदड़ या गिदड़े, द वल्चर्स, 1961 में पब्लिश हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मोस्ट पॉपुलर है, शांताता कोर्ट चालुआ है, या इंग्लिश में इसका है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। ये 1967 में पब्लिश, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय प्रिया अदारकर 1979 में। 1967 में ये पब्लिश हुआ, 1979 में ये ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में बाय प्रिया अडारकर। स्टूडेंट रिमेंबर, पूछा जा सकता है हु हैज ट्रांसलेटेड दिस। देन कन्यादान, गिविंग अवे ऑफ अ डॉटर इन मैरिज, कन्यादान, गिविंग अवे of a daughter in marriage, it was published in 1983. So remember, grahasth, shrimant, thief, police, gidad या the vultures, shantata court चालू है, silence court is in session, और कन्यादान। So these are famous plays written by Vijay Tendulkar. Got it student? Voice is clear, yes or no? Voice is clear, yes or no? चलिए, so student let us move ahead. यहाँ पर थोड़ा सा लेट अस ब्रीफली डिस्कस अबाउट शांताता कोर्ट चालुआ है, बहुत फेमस इनका वर्क है, इसके ऊपर हम हल्का सा चर्चा करते हैं। लेट अस डिस्कस स्टूडेंट, शांताता कोर्ट चालुआ है की हम बात करें तो इट वाज रिटन इन 1963, इट वाज रिटन इन 1963 बट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1967, 1967 में 1967 में परफॉर्म किया गया। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि साइलेंस कोर्ट इज इन सेशन क्या है, थोड़ा सा आगे पढ़े हम। द प्ले इज प्ले इनसाइड द प्ले इन इट। ये जो प्ले है, प्ले इनसाइड द प्ले,
देखिए, देयर इज अ प्ले इनसाइड द प्ले, ऐसा क्यों कह रहे हैं? साइलेंस कोर्ट इज इन स्टेशन, इसी में क्या हो रहा है कि गांव के लोग हैं, देयर आर सम विलेजर्स, है ना, दे गेदर्ड अ प्लेस एंड दे डिसाइडेड टू प्ले। एक्चुअल में ये प्ले है, साइलेंस कोर्ट इज इन स्टेशन, ये अपने आप में प्ले है। और इस प्ले में ये बताया गया है कि जो गांव वाले हैं कुछ, वो डिसाइड करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि एक गेम खेलना है, एक प्ले करना है, एक गेम प्ले करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है प्ले इनसाइड द प्ले। अब वो क्या गेम खेलना चाहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम, हम आगे देखते हैं। हियर यू कैन सी स्टूडेंट, द ड्रामा प्रेजेंट्स अ मेटाफोरिकल ट्रायल बिटवीन द ह्यूमनिस्ट एंड द एंटी ह्यूमनिस्ट। जो ह्यूमनिस्ट है और जो एंटी ह्यूमनिस्ट है, उसके ऊपर ये ड्रामा मेटाफोरिकल ट्रायल के रूप में प्रेजेंट होता है। ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी, और जो एंटी ह्यूमनिस्ट है, जो मानवता अमानवता या कह सकते हैं जो एंटी ह्यूमनिस्ट है। स्टूडेंट, इसमें जो है एक महिला की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। ठीक है, और देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, अगेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज परफॉर्म्ड इन दिस प्ले। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं हम। द प्ले इज मॉक ट्रायल ऑफ अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कूल टीचर मिस लीला बेनारे। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर कौन है, मिस लीला बेनारे। लीला बेनारे के बारे में है ये। और यहाँ पर क्या है, शी इज चार्ज विद इन्फेंटिसाइड एंड हैविंग इलिसिट या इलिजिटिमेट रिलेशंस, यानी क्या बोलते हैं, इलीगल रिलेशंस विद अ मैरिड पर्सन प्रोफेसर दामले। ये दोनों कैरेक्टर हैं, दामले हैं और लीला बेनारे हैं। इन दिस वे हर प्राइवेट लाइफ इज एक्सपोज्ड, और इस तरीके से जो लीला बेनारे की है प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, लेट मी टेल यू। जो गांव के लोग हैं वो एक प्लेस पे इकट्ठे होते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक गेम, एक प्ले करना है। उसमें इकट्ठे होने के बाद में उसमें एक घर में इकट्ठे होते हैं, और उस घर में इकट्ठे होने के बाद में वो सब अपनी अपनी भूमिका सबको दे दी जाती है, कैरेक्टर डिसाइड कर दिया जाता है ना। कोई जज बन जाता है, कोई वकील बनता है, इस तरीके से, है ना, जज बनते हैं, वकील बनते हैं, है ना, प्रोसिक्यूटर। अब वहां पर ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसको पीड़ित किसको बनाया जाए, किसको जो है मुलजिम, सॉरी, ठीक है, मुलजिम किसको बनाया जाए, किसके ऊपर आरोप लगाया जाए। तो इसी बीच में लीला को भी आमंत्रित किया जाता है, और लीला को जो है वहां घर में पहुंचने से पहले, जहां प्ले परफॉर्म किया जाना है, जहां नाटक खेला जाना है, गेम खेला जाना है, वहां पर लीला पहुंचने से पहले ही दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। तो लीला को पूछे बगैर ही उसको एक कैरेक्टर दे दिया जाता है, उसको जो है मुलजिम बना दिया जाता है। मुलजिम क्या, एक प्रोफेसर दामले के साथ में उनके रिलेशन को लेकर के, और फिर उसको सजा देना है। एक्चुअल में ये रियल इंसिडेंट है विच हैपेंड विद लीला बेनारे, और पूरे गांव में दबी जुबान ये चर्चा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो मिस लीला है उसका रिलेशन प्रोफेसर दामले से है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से है। तो कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं होता है, तो इसलिए लीला को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए, लीला को वो गलत है ये साबित करने के लिए ये प्ले परफॉर्म किया जाता है। गॉट इट स्टूडेंट, यस आर नो, गॉट इट? ठीक है, तो लीला यहाँ पर जो है एक विक्टिम है, यहाँ पर पीड़ित भी है, और उसको जो है आप कह सकते हैं उसको दोषी बनाया जाता है। अब प्ले परफॉर्म होता है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, मिस्टर काशिकर द जज, जज भी है, ऑर्डर्स द स्कूल अथॉरिटीज टू डिसमिस मिस लीला, एन इमोरल वुमेन ऑन द चार्ज ऑफ अनमेरिड मदरहुड एंड हैविंग इलिसिट रिलेशंस विद सो मेनी पर्संस। ठीक है, थोड़ा सा हम, मैं आपको यहाँ पर बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर वो जो है, यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि जो कोर्ट में, यानी जो कोर्ट चल रहा है, एक तरीके से कोर्ट बैठी है, जज का रोल कर रहे हैं, वकील का रोल कर रहे हैं, और लीला बेनारे को यहाँ पर दोषी साबित कर रहे हैं, और अंततः जो है लीला बेनारे को दोषी साबित कर दिया जाता है। इस बीच लेट मी टेल यू स्टूडेंट, लीला बेनारे को बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि ये जो प्ले है वो कहीं ना कहीं मुझे गलत साबित करने के लिए, या मेरी ही जो पर्सनल लाइफ है उसको एक्सपोज करने के लिए उसके ऊपर डिपेंड है।
तो शुरुआत में फिर वो मना करती है, लेकिन बाद में उसको मनाया जाता है कि नहीं, वो बोलती है कि नहीं, अब मुझे ये प्ले नहीं करना, मुझे गेम नहीं खेलना है। लेकिन वो जो लोग होते हैं गांव के लोग, वो उनको समझाते हैं नहीं, ये तो एक प्ले है, इसको आप सीरियसली मत लीजिए। लीला से कहते हैं कि आप इसको सीरियसली मत लीजिए, ये एक प्ले है, गेम है ना, आप हमारे साथ गेम ही है, इस तरीके से। लेकिन अंत में जब फाइनली जो है लीला बेनारे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने के कारण, है ना, बिना शादी के रिलेशन रखने के कारण उसको जो है दोषी साबित कर दिया जाता है और उसको स्कूल टीचर से डिसमिस करने का फैसला सुनाया जाता है। अंत में वो बेहोश हो जाती है ना, और बाकी लोग जो है अपने अपने कैरेक्टर, अपने अपने वास्तविक व्यवहार में आ जाते हैं, लेकिन लीला बहुत देर तक वहां पर बेहोश है, बहुत बेसुध पड़ी रहती है। उसको समझाया जाता है कि केवल प्ले था, इस तरीके से। तो लीला आखिरी में वो क्या है, ट्राई टू डिफेंड हरसेल्फ थ्रू अ लॉन्ग स्वालिक्वी, स्वाली लग गया, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कहती है, द पैरट ऑफ द स्पैरो सेड, व्हाई आर यू आईज सो रेड, ओ माय डियर फ्रेंड, व्हाट शैल आई से, समवन हैज स्टोलन माय नेस्ट अवे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, किसी ने मेरा घोंसला चुरा लिया है। किसी ने मेरा घोंसला चुरा लिया है का मतलब क्या है, मेरी निजता, मेरी प्राइवेसी को चुरा लिया है। और एक स्पैरो अंदर ही अंदर रो रही है, आप इतनी रेड क्यों हो चुकी है, आंखें लाल क्यों हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से लीला बेनारे की भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट, इन द प्लॉट अ ग्रुप ऑफ टीचर्स प्लान टू स्टेज अ प्ले विद इन अ प्ले इन द विलेज। जैसा मैंने आपको बताया है, ये टीचर्स का ही ग्रुप है जो लीला बेनारे को एक्सपोज करना चाहता है। An improvised free flowing rehearsal is arranged and a mock staged to make the noise understood court procedure, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट प्रोसीजर को भी समझना है और उसको जो लीला बेनारे का जो कृत्य है उसको भी एक्सपोज करने के हिसाब से। A mock charge of infanticide is leveled against Miss Benare, another court member, है ना, इनको ऊपर चार्ज लगाया जाता है, इनको दोषी पाया जाता है, इस तरीके से। तो ये पूरा जो है साइलेंट द कोर्ट इज इन सेशन इज वन ऑफ द फेमस ड्रामा रिटन बाय विजय तेंदुलकर जी, ठीक है। घासीराम कोतवाल भी स्टूडेंट, अब इनको इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पेशवा ऑफ नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो है बहुत ही लस्ट, और आप कह सकते हैं कि बहुत ही थोड़े से महिलाओं के प्रति जो है बहुत ज्यादा क्रूएल टाइप के व्यक्ति हैं। इनके ऊपर ये है, थीम इज हाउ men in power give rise to ideologies to serve their purposes and later destroy them when they become useless। यहाँ पर यही थीम है कि एक व्यक्ति जो पावर में होता है, ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पर जो है जो आइडियोलॉजीज है उसको लेकर के नो, यहाँ पर जो है दामले का कुछ नहीं होता है। यहाँ पर दामले जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्टली जो है आप यहाँ पर जो लीला बेनारे हैं उसी को एक्सपोज करने के लिए हैं, और अंत में वो बेहोश हो जाती है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं घासीराम कोतवाल जो है किस तरीके से लोग अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। द प्ले बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लॉर्ड गणेश, ठीक है, लॉर्ड गणेशा की पूजा के साथ में ये शुरू होता है। और इसके बाद में the Brahmins of Pune introduce themselves and we can see the morally corrupt state of affairs in Pune. Nana Fadnavis, who is also corrupt, visits the Lavani dancer. Ghasiram is working with the Lavani dancer, ठीक है। तो पूरा ये इस तरीके से प्ले है महिलाओं, नाना फडणवीस और घासीराम के बीच में। और एक समय बाद में घासीराम जो है जो है वहां का कोतवाल या पुलिस ऑफिसर बन जाता है, और ये प्ले इस तरीके से आगे चलता है स्टूडेंट, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट बादल सरकार या सरकार, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमको बहुत सारी चीजें कवर करना है। सो आई एम ट्राइंग, सारे नॉवेल सारे प्लेस को डिटेल में नहीं सुना जा सकता है, यू कैन लिसन द स्टोरी, और आई विल ट्राई टू अपलोड द फुल स्टोरी ऑफ द पर्टिकुलर ड्रामा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बादल सरकार। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बादल सरकार। हम बादल सरकार की अगर हम बात करें स्टूडेंट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1925, है ना, 1925 में पब्लिश हुआ है, और 2011 में जो है ये इनकी सॉरी बादल सरकार का जो जन्म हुआ 1925 में और डेथ हुई है 2011 में। बादल सरकार इज आल्सो नोन एज बादल, है ना, सरकार, हु वाज एन इन्फ्लुएंशियल इंडियन ड्रामाटिस्ट एंड
theater director, most known for his anti-establishment plays during the Naxalite movement in 1970s, and he founded his own theater company Shatabdi. पूछा जा सकता है 1976 नक्सलाइट मूवमेंट से भी कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ता है, और जो है इनका जो थिएटर है शताब्दी 1976 बहुत फेमस है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ही रॉट मोर देन 50 प्लेज अमंग विच एवोंग है ना, एवोंग भी कहीं पर मिलता है, लेकिन जो है बेसिकली ये एवोम है, ठीक है, एवोम इंद्रजीत, ठीक है। यहां पर जो है एवोम इंद्रजीत जो है ना, एवोम इंद्रजीत इनका फेमस वर्क है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। उसके बाद में बासी खबर, सारी रात आर वेल नोन लिटरेरी पीसेस। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या इनके हैं, एवोम इंद्रजीत, बासी खबर, सारी रात, दीज आर फेमस लिटरेरी पीसेस या वर्क हैं, बादल सरकार के द्वारा लिखे गए हैं। इनको पद्मश्री मिला है 1972 में, और ठीक है। हिज रियल नेम वाज सुधींद्र सिरकार। देखिए यहाँ पर इनका जो रियल नेम क्या है, सुधींद्र सिरकार, आप सिरकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट यहाँ पर इनका जो फेमस वर्क है इवाम इंद्रजीत इज अ प्ले अबाउट 3 पीपल, अमर, बीमल और कमल, है ना। ये जो इवाम इंद्रजीत है ये 3 लोगों के बारे में है, अमर, बीमल और कमल, और एक जो है इंद्रजीत के बारे में है, 4 है। His plays that were written between 1956 या 60 are titled as Solution 10, एक और प्ले है। His play पगला घोड़ा is play about the political and religious condition of the time, है ना। ये इनके प्लेज है, कुछ याद रखना, ठीक है। और his other well known plays are भूमा और the other history. इवाम इंद्रजीत ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गिरीश कर्नाड, ये ध्यान रखना है। और गिरीश कर्नाड में हमने पढ़ा है, आई टॉट यू एंड आई मेंशन्ड दिस फैक्ट व्हेन वी वर स्टडीइंग गिरीश कर्नाड। जब हम गिरीश कर्नाड के बारे में जान रहे थे तब इवाम इंद्रजीत इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गिरीश कर्नाड, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ थिएटर कॉल्ड थर्ड थिएटर। ही रॉट हिज लैंडमार्क प्ले एवोंग इंद्रजीत या एवोम इंद्रजीत एन इंद्रजीत इन 1983, बहुत फेमस स्टूडेंट। एवोम इंद्रजीत इनका बहुत फेमस वर्क है। द प्ले आप कह सकते कैटापल्ड हिम into instant fame as it captured the loneliness of post-independence urban youth with dismaying accuracy. He followed other plays इनके बाकी इतिहास, प्रलाप, डेलिरियम, त्रिंशा शताब्दी, ये देखिए 13th सेंचुरी, पगला घोड़ा और शेष नाई, देयर इज नो एंड, शेष नाई, किसी प्रकार का शेष नाई, है ना। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट। और एक और ड्रामा ट्विस्ट है, लास्ट ड्रामा ट्विस्ट है, ठीक है। लेट अस डिस्कस आसिफ करीम बॉय। आसिफ करीम बॉय के बारे में नाम सुना है, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ आसिफ करीम बॉय? आपने आसिफ करीम बॉय का नाम सुना? एनीबडी, इज देयर एनीवन who has heard the name of Asif Karim boy? चलिए स्टूडेंट, आसिफ करीम बॉय, he was born in 1928, died in 1994, is an Indian playwright who wrote in English. He was among the few Indian dramatists writing plays exclusively in English. कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, उनमें आसिफ करीम बॉय भी हैं। He wrote and produced over 30 plays in several genres. Student, 30 से ऊपर इन्होंने plays लिखे हैं, 30 से ऊपर इन्होंने plays लिखे हैं। His work incorporated monologues, chorus, chants, songs, ये सब इन्होंने समाहित किया है। और फिर इनका जो नाम था खोजा मुस्लिम, his father was an industrialist and his mother was a social worker, है ना, born as a खोजा मुस्लिम। He became acquainted with English at a young age while studying at St. Xavier's College and attained mastery over the language. जब ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में थे तभी इन्होंने जो है इंग्लिश के ऊपर कमांड करना शुरू कर दिया था और बहुत अच्छी मास्टरी हासिल करी। He pursued his higher education in the United States at the University of Wisconsin, where he developed a love for Shakespearean drama, which continued to have a profound influence on his work.
जब ये यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई कर रहे थे अपने हायर एजुकेशन, तो इन्होंने शेक्सपियरियन ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, और इनके वर्क के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है विलियम शेक्सपियर के ड्रामास का। After returning to India, he initially worked for the Burma Shell Oil Company. यहाँ पर काम किया इन्होंने, but gave up that position to pursue playwriting full time as he became successful. तो यहाँ कंपनी में भी वर्क किया, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया और प्ले राइट के रूप में बहुत सक्सेस हुए। गोवा इनका एक वर्क है स्टूडेंट, गोवा इनका एक वर्क है। His first play, Goa, written in 1964, deals with racial discrimination as a paradigm of post-colonialism. Racial, मैं फिर कह रहा हूँ ना, जाति भेद, रंग भेद को यहाँ पर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है स्टूडेंट। इनके जो वर्क है कुछ और, द डोल ड्रमर्स, द डम डांसर, द हंग्री वंस, द रिफ्यूजी, सोनार बांग्ला और द डिसिडेंट एमएलए, these are famous work written by Asif Karim Boy. ठीक है, so once again student, thank you very much, and here we have now come to the end, and I would like to thank you very much, and once again I would like to tell you student, this is our wind up class of unit 6 English in India, है ना स्टूडेंट। यू रिमेंबर बहुत कुछ मैंने इंग्लिश इन इंडिया में आई हैव टॉट यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, है ना, किस प्रकार से इंग्लिश का भारत में ओरिजिन हुआ और किस प्रकार से अंग्रेजों ने समय समय पर इंग्लिश में कानून लाया भाषा के विकास के लिए, किस प्रकार से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू स्टूडेंट, many things I have taught you. You can go through my PDFs and you can revise this topic. I would like to request you student, now from tomorrow I will start first 4 units. चारों units all together we will study. चारों units साथ में चलेगी, है ना। So don't miss any single class. Do not miss any class, because the 4 chapters, first 4 units are very very important for the UGC NET JRF. And once again I would like to request you student, our filler form app is only dedicated, you can say, for the UGC NET JRF examination for any subject. We provide you content, we provide you for content as well as teaching for first paper and second paper of all UGC NET JRF. So you can share this information with your friends. And thank you very much. And once again, for motivating you, I would like to tell you, please go through first paper. एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले पेपर को भी sufficient time दीजिए please. I would like to request you, go through, study, give proper time to the first paper also. Make combination between these two paper, as I told you. पहली पेपर का जो कुछ यूनिट्स हैं, एक्सेप्ट रीजनिंग मैथ्स को छोड़ के सारी यूनिट्स, 3 यूनिट्स होगी उसमें रीजनिंग मैथ्स की, उसको छोड़ के सारी यूनिट, और जो कंप्यूटर वाला ICTC वाला पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सारी यूनिट्स कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। सो प्लीज डू नॉट think that your subject is separated, your first paper is separate, your second paper is separate. No student, these two papers are correlated each with each other, है ना। आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, वहां पर जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें की गई है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें की गई है, आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। सेकंड शोध अभिक्षमता है, रिसर्च एप्टीट्यूड है सेकंड यूनिट हमारी फर्स्ट पेपर की, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द 10th यूनिट ऑफ सेकंड पेपर। इंग्लिश लिटरेचर की जो 10th यूनिट है रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में, है ना, तो वहां पर जो डायरेक्टली जुड़ी है। कॉम्प्रहेंशन, अब इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच आपकी बढ़ती है। कम्युनिकेशन, संचार वाला जो पार्ट है, तो इंग्लिश में अल्टीमेटली यू हैव टू बिकम अ टीचर, सपोज यू हैव टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर, यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, देन हाउ टू टीच, है ना। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू टीच यू, है ना। आप जैसे बुद्धिजीवी स्टूडेंट्स को आप लाइक you all are all the students you have persuaded MA in English literature, you all are intellectuals, and I am teaching you. It is very difficult to ask a student to teach like you intellectual students. You all are really intellectuals, and I am trying to teach you. So this is also a skill, so you have to develop the skill, and you will learn from the first paper. So make combination, पहले पेपर के साथ सेकंड पेपर के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, रिवीजन करें मल्टीपल टाइम्स। वंस अगेन लेट मी टेल यू, प्लीज multiple times revise the topics again and again. Make your short notes, write down it with your pen, and when you write the things you remember, you memorize for a long time.
anything which we write with our hands we memorize for a long time. Am I right? Yes or no? ठीक है? Yes, I have already, पूनम जी, I have already made, जो फोल्डर बना है वो यूनिट 6 का ही है. अब कल से नया फोल्डर बनेगा. आई हैव अच्छा आप यूनिट 6 बाकी के लिए ओके. यस आई विल मेक, है ना, आई विल नॉट कंबाइन. अभी ये जो यूनिट 6 का कंप्लीट फोल्डर है ना, उसमें लिखा भी, अब जो कल से जो नोट्स अपलोड होंगे वो अलग नया फोल्डर रहेगा बेटा. ठीक है? ओके, सेटिस्फाइड? ठीक है. बिल्कुल. इफ यू, है ना, यू शुड लीव द स्पेस. एंड सबसे अच्छा ये रहता है कि इफ यू हैव, आपका जो रजिस्टर होता है उसमें आप 1/3 में लिखें. थोड़ा सा आप शुरू में ही आप साइड में थोड़ा, जैसे जो हम मार्जिन होता है वो छोड़ते चले तो बाद में हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं. ठीक है? आप बिल्कुल नोटबुक बनाते समय जरूर छोड़ें स्टूडेंट, क्योंकि आप इसमें डिटेल में भी जा सकते हैं. इसके एमसीक्यू में जाएंगे. आप सोचिए हम लोग ये बड़ा बड़े ड्रामा और नॉवेल से हैं, है ना, एक एक ड्रामा एक एक नॉवेल को डिस्कस करने में 2-2, 3-3 घंटे लग सकते हैं. लेकिन आई हैव ट्राइड विद इन लिमिटेड टाइम, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर थिंग्स. इज इट क्लियर? आई एम ट्राइंग टू गिव यू, बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड लीव द स्पेस, है ना, इन योर नोटबुक, सो दैट यू कैन एड सम मोर पॉइंट्स. आपको बाद में जो भी आपने नया फैक्ट, पर्टिकुलर कोई राइटर से संबंधित, कोई पर्टिकुलर वर्क से संबंधित आपने पढ़ा, तो उसको वहीं लिख दें, है ना, खिचड़ी नहीं होगी. ठीक है? ओके. इन फ्रॉम नेक्स्ट हम वी विल स्टार्ट एमसीक्यूज आल्सो. ठीक है? ओके. यस. So thank you very much once again, student. Thank you. I hope you are enjoying my class. Thank you very much.